Dear student and friends, you are welcome. In sixth period of standard 10 maths 1, topic is quadratic equation. इस पीरियड में हम जो quadratic equation के जो रूट्स होते हैं उसके नेचर के संदर्भ में और quadratic equation के रूट्स के जो रिलेशन है उसके संदर्भ में और रूट्स यदि दिए हैं तो उनसे इक्वेशन कैसे फॉर्म करना ये अपन पढ़ने वाले हैं. नेचर ऑफ roots of quadratic equation. Nature of roots of quadratic equation. If ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then its root are alpha equal to minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. These are the roots of quadratic equation. X square plus bx plus c equal to 0. Then we have to find root of this equation. And nature of these roots determine this value b square minus 4ac. Number 1, if b square minus 4ac equal to 0, then alpha equal to minus b plus square root of 0 upon 2a and beta equal to minus b minus square root of 0 upon 2a, that is alpha equal to minus b upon 2a and beta equal to minus b upon 2a. 0 ऐड किए या माइनस की कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो क्या आता है अल्फा इक्वल टू बीटा. अल्फा इक्वल टू बीटा. लेकिन देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब क्या आता है अल्फा और बीटा दोनों सेम होते हैं. रूट्स कैसे रहते हैं इक्वल. और ये क्या है रियल नंबर पे. देयरफॉर व्हेन b square minus 4ac equal to 0, then roots are real and equal. Second case, if b square minus 4ac is greater than 0, greater than 0 means पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव हो जाएगा ये. देन अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देखो ये पॉजिटिव नंबर है मतलब रियल नंबर आएगा. यानी कंप्लीट क्या होगा रियल नंबर. ये भी कंप्लीट नंबर लेकिन अल्फा के बराबर बीटा नहीं होगा. तो क्या होता है यहाँ पे देयरफॉर व्हेन b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and unequal. कैसे रहेंगे अनइक्वल. Third, if b square minus 4ac is less than 0, then alpha equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Then see here b square minus 4ac is less than 0, मतलब ये निगेटिव हल हो जाएंगी और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अ नॉट रियल नंबर. तो ये भी रियल नंबर रहेगा, ये भी रियल नंबर नहीं होगा, मतलब रूट्स आर नॉट रियल. दैट इज व्हेन b square minus 4ac
is less than 0, then roots are not real. तो अपन क्या देखें, रूट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर. द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is determined by b square minus 4ac, determined by 4ac, and it is called discriminant. क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. ये जो है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b square minus 4ac, and denoted by Greek letter डेल्टा. और ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से. तो अपन शॉर्टकट में लिखेंगे देयरफॉर b square minus 4ac equal to delta. Value of delta determines the nature of roots of quadratic equation. Then if this value delta equal to zero, then roots are real and equal, and this value is greater than 0, then roots are real and unequal. If this value is less than 0, then roots are not real. Now activity of page number 40 in your textbook. Activity, fill in the blanks. Here is value of discriminant and nature of roots. Here number 1, value of discriminant is 50 minus 38 0. 50 means b square minus 4ac is greater than 0. 0 से बढ़कर है, तब क्या होते हैं? रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल. क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट माइनस 30 लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. और 0 होता है, क्या होता है? रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल. 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. नेक्स्ट एक्टिविटी दी है बुक में. डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0. तो सोल्यूशन दिया है यहाँ पे. सोल्यूशन कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो अपने को a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 1. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 9. देख, b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4. a के जगह लिखेंगे अपन 1 और c के जगह माइनस 9. कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस रखेंगे अपन. 4 इंटू 9 36 आएगा माइनस 36. यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 36, क्योंकि माइनस यहाँ पे रखा हुआ है, ये माइनस जैसे वैसे. आगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. 4 प्लस 36 इक्वल टू 40. तो डी क्या है?
40 means b square minus 4ac greater than 0, therefore roots are real and unequal. इस तरह ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. देखिए relation between roots of the quadratic equation and coefficient. If alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then alpha equal to minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a and beta equal to minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a. To find the relation between roots of quadratic equation and coefficient at this alpha and beta, alpha plus beta equal to minus b plus square root of b square minus 4ac upon 2a plus minus b minus square root of b square minus 4ac upon 2a, that is equal to, देखिए तो अपन सेपरेट कर देते, minus b upon 2a plus square root of b square minus 4ac upon 2a, यहाँ पे minus b upon 2a minus square root of b square minus 4ac upon 2a. तो ये टर्म से में प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी. क्या आएगा ये? Therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a. क्या हो जाएगा ये? इक्वल टू, ये डबल है, डबल माइनस b अपॉन 2a क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन ये. आगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा है माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्या दिखता है यहाँ पे? a प्लस b, यहाँ पे a माइनस b क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या आएगा? माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर. देयरफॉर क्या आएगा ये? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. ये माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये से ये आप एक ही कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन ये, c अपॉन. तो अपना क्या मिल रहा है? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a इक्वल टू, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a. अब ये माइनस b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर बात यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन है अल्फा और बीटा के बीच में, मीन्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में ये वाला रिलेशन है। कौन से, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी पे आधारित एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 10x square plus 10x plus 1 equal to 0. You have to find alpha plus beta and alpha into beta. अब क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, देखो ये बी और ये 10 बाय 10 कितना हो जाएगा 1, आएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, मीन्स 1 बाय 10, 1 बाय 10, एक दीजिए आपकी बुक में। To obtain quadratic equation having given roots, suppose if alpha and beta are roots of quadratic equation with variable x, then तब क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एंड x इक्वल टू हो जाएगा बीटा। x की वैल्यू अल्फा के बराबर आएगी, x की वैल्यू बीटा के बराबर। तो अपन इसे लिख सकते हैं अल्फा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल टू 0। और देखिए ये दोनों का वैल्यू 0 कब आएगा, जब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इनका प्रोडक्ट 0 होगा तब। देखो देखिए अपन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा 0 होगा तब। अब इसे अपन को सिंप्लीफाई करते, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस और एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा एक्स, क्या किए ये माइनस कॉमन ले लिए, या बीटा यहाँ पे बचा अल्फा और यहाँ से एक्स कॉमन लिए इस साइड में, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते अपन अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे मिल रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और इसी के आधार पर आगे एक्टिविटी दी है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट इज 9। तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है सम ऑफ रूट्स, कितना दिया यहाँ पे सम ऑफ रूट्स
10। और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल कितना है भाई, 9 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्टिविटी कंप्लीट। एक्टिविटी 2, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इक्वल दिया है 2 एंड बीटा दिया है 5। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 2, यहाँ पे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, यहाँ पे 2 इंटू 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 5 7, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 0। इस तरह एक्टिविटी कंप्लीट।